आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर ने मुलाजिमों से बात की है, मैनेजमेंट, टीचर्स, कई तरह के लोगों से भी उन्होंने बात की है और मरकज के साथ रियासती हुकूमत के कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कुछ खास सनतकारों के कर्ज माफ कर रही है, लेकिन किसानों के कर्ज माफी के लिए उनके पास पैसे नहीं है। रोजगार, इंडस्ट्रीज, जमीन लूट का मुद्दा उठाते हुए राहुल ने दोनों हुकूमतों पर जमकर सवाल उठाए। The Congress party believes in fairness, and if you look at our policies, all of them are designed to create a level playing field for different groups of people. You must have heard in a lot of speeches I speak about forgiving the loans of farmers. Is that if the Prime Minister of India can forgive 3,50,000 crores of 15 people, the richest people in the country, then he should be ready to forgive the loan of India's farmers. We are not asking for any free gift for the farmers. We are just saying that whatever you do, you treat everyone fairly. If you are treating the richest people in the country and you're giving them loan waiver, then you owe that to the farmers of the country. You are doing a service to Telangana, and every education institution, whether it is private, whether it is government, whether it is small, whether it is large, is doing a service to the people of Telangana. And our main complaint, and it is your complaint as well, is that the government of Telangana is not being fair to your institutions, and we completely agree with you. दूसरी जानिब तेलंगाना में कांग्रेस की क़यादत में बने इत्तेहाद ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी के साथ आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू और दीगर इत्तेहादी जमात के लीडरान कल एक साथ नजर आए। इस दौरान दोनों ने रोड शो भी किया, जहां दोनों ने मुल्क को बचाने के लिए सभी को साथ आने की अपील भी की। तो इत्तेहाद का एक बड़ा जलसा। We are not adversaries, we are working together, and we are working together because there is a threat to this nation from the Prime Minister, from the BJP. There is a threat to every single institution of this nation, and we are defending the institutional structure of this nation and the future of this nation. We have a lot in common, and we are working together, and we are having a very nice time doing so. We are very clear. Nation is one. It is our responsibility. Telugu Desam, Congress Party and other political parties have to join together to defeat BJP and save the nation. You are all witnessing what has happened for the last 4 years. Even today, even media is under tremendous pressure, and also all institutions totally demolished. It is the responsibility of every citizen, all political parties together, to fight against BJP and win the elections. Yeah, we are now working for the development of the region. We fought for a separate state, having achieved it. Now we are trying to fight for democratic development, a development that benefits everyone in this region. And in this struggle, we want to take the support of every political party, and that is also the present thinking and mood in Telangana, that they want these political parties to come together and fight for a better Telangana. तेलंगाना में कांग्रेस की तशहीरी मुहिम तेज करने की गरज से तेलंगाना में खासतौर से कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर आनंद शर्मा ने रियासती हुकूमत को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने 4.5 सालों में रियासती अवाम के साथ सिर्फ धोखा किया है। तेलंगाना इलेक्शन आखिरी मरहले पे है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर शर्मा साहब। आनंद शर्मा साहब, बताएं तेलंगाना में ऐसे कौन सा मुद्दा है जिसे लेके आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, तेलंगाना में लोग परेशानी में हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने और टीआरएस की सरकार ने लोगों को धोखा दिया है। पहले इनको गलत वायदे किए, उनका भावनाओं से खेले, और उसके बाद सारा जो काम उन्होंने किया अपने
प्रचार के लिए, अपना व्यक्तित्व को उभारने के लिए, अपनी शख्सियत के लिए, अपने परिवार के लिए किया। जो भी वायदा किया था, चाहे नौजवानों को रोज़गार का, वो पूरा नहीं हुआ। यहाँ बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ी है। तो तेलंगाना में अगर आप देखें, तीसरा दर्जा है तेलंगाना का पढ़े लिखे जो बेकार नौजवान हैं उसमें। उसके साथ साथ अगर गरीबी की बात देखें तो यहाँ पे 80% लोग BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। उसका क्या वजूहत है? जो ना तो लोगों को घर मिला, ना पानी मिला, ना रोज़गार मिला, ना किसान को उसकी फसल की कीमत मिली, और पैसा भ्रष्टाचार में इन्होंने बर्बाद किया है। आज भी शर्मा जी, इससे पहले तो कांग्रेस ने ही यहाँ पे राज किया है, काफ़ी लंबा समय जो है कांग्रेस को मिला था, लेकिन जो बेरोजगारी का जो मसला है इतनी नहीं है, बढ़ी है इनके समय में। बुनियादी बात यह है कि ये सरकार को नहीं चला पाए, ना इन्होंने ईमानदारी दिखाई है। ये जो 2,20,000 करोड़ का कर्जा हुआ है तेलंगाना पर, तेलंगाना तो अभी बना है ना, तो ये कर्जा भी अभी ताज़ा है, 4.5 साल का। वो उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब तो यही देंगे। तेलंगाना राज्य पहले नहीं था, पहले तो आंध्र प्रदेश था ना। कांग्रेस का एक बड़ा योगदान है तेलंगाना बनाने में। फ़ायदा उसका उठाया TRS ने और KCR ने, ये बुनियादी बात है। और ये भी एक बात और है जो मैं अभी बताया हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी और इसमें KCR में नूरा कुश्ती है। ये दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ रहे हैं, और TRS ने दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर हमेशा हमारा विरोध किया है और मोदी जी का साथ दिया है, और मोदी जी के हर गलत फैसले का साथ दिया है। और ये आज भी लोकसभा चुनाव के बाद मैं कह के जा रहा हूँ, ये दोनों साथ खड़े होंगे। लेकिन TRS का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ हमें BJP के साथ मिला के अपना काम बनाने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ी है, यहाँ पे 2.5 लाख वैकेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज़, 25,000 ये सिर्फ नौकरी पैदा कर पाए। अगर आप इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो, इनका 12वां दर्जा है, और इलिटरेसी के उसमें आप देखिए तो बिहार के बाद दूसरा नंबर इनका आता है, जहाँ सबसे ज़्यादा बिना पढ़े लोग हैं। तो ये मुद्दे नहीं हैं। यहाँ सवाल एक ये पैदा होता है कि आपने तेलंगाना KCR के लिए बनाया था या यहाँ की जनता के लिए? यहाँ के लोगों के लिए बनाया था, तभी तो हमने फैसला किया था। पर जो इसने बातचीत करी थी काम करने की, अच्छा काम, वो तो इन्होंने करके दिखाया नहीं। लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार बनाने में कामयाब होगी? सरकार हम बनाएंगे। जो हमारा है, जो फ्रंट है, पीपल्स फ्रंट, वो बनाएगा। जी शुक्रिया। शर्मा जी का कहना है कि यहाँ पे जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस ही बनाएगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया बेंगलोर। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए सभी सियासी जमातों ने कमर कस ली है। 7 दिसंबर को होने वाली वोटिंग से पहले कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। कमेटी के सदर NVSS प्रभाकर ने मरकजी वजीर बंगारू दत्तात्रेय की मौजूदगी में पार्टी का मंशूर जारी किया, जिसमें खवातीन, किसानों और नौजवानों पर खास फोकस किया गया है। साथ ही सरकारी मुलाजिमों की रिटायरमेंट की उम्र को 58 से बढ़ाकर 60 करने का वादा भी किया गया है। इसके अलावा पेट्रोलियम अशिया और मेट्रो के किराए में कमी का भी वादा किया गया है। उधर मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मोदी हुकूमत की हुसूल याबियां गिनवाई। एक अवामी रैली में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने फसलों पर बढ़ाई गई MSP का जिक्र करते हुए 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का दावा किया, और इस मौके पर राजनाथ सिंह ने रियासती हुकूमत पर भी वादा खिलाफी के इल्जाम लगाए। उन्होंने अलग रियासत तश्कील का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी की बनाई हुई रियासतें तरक्की कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने आंध्रा और तेलंगाना दोनों को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ की TRS गवर्नमेंट तो सचमुच यहाँ के रैयत के साथ क्रूर मजाक कर रही है। यही कारण है कि यहाँ का रैयत सुसाइड करने पर मजबूर हो रहा है, और इनके 4-4.5 वर्षों के शासनकाल में 4,500 फार्मर्स ने सुसाइड करने के लिए मजबूर हुए। रैयत के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी की गवर्नमेंट ने आपकी पैडी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है, वीट की बढ़ाई है, ग्राम की बढ़ाई है। इतना ही नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह भी संकल्प लिया है कि 2022 आते आते हम अपने फार्मर्स की इनकम को जस्ट डबल कर देंगे। हमारी गवर्नमेंट यहां पर आ जाएगी तो 2 लाख रुपए तक का लोन आपका माफ कर दिया जाएगा चुटकी बजाकर। और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है? जब अटल जी ने 3 न्यू स्टेट्स, नए राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़,
झारखंड, उत्तराखंड, आज तीनों स्टेट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने 2 स्टेट बनाए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं? और आज तक इनकी जो आपस की प्रॉब्लम्स हैं, आपस के झगड़े हैं, क्यों नहीं सुलझ रहे हैं? तेलंगाना असेंबली इंतखाब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें कि बीजेपी के साथ कांग्रेस इत्तेहाद भी उनकी सीटों पर खास नजर बनाए हुए है। मलकपेट सीट हैदराबाद में अहम और मरकजी हैसियत रखती है और काफी दिनों से यहां पर एमआईएम कामयाब भी होती रही है। हालांकि इस मर्तबा कांग्रेस की क़यादत वाले इत्तेहाद से टीडीपी के उम्मीदवार अपनी जीत का यहां दावा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की कयादत में तेलंगाना में बना इत्तेहाद टीआरएस और एमआईएम के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। शहर के मकलपेट से अब तक एमआईएम उम्मीदवार अहमद बलाला कामयाब होते रहे हैं, लेकिन इस बार मुजफ्फर खान को टीडीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें कांग्रेस समेत पूरी इत्तेहाद की हिमायत हासिल है, जिसे देखते हुए वो अपनी कामयाबी को यकीनी मान रहे हैं। हालांकि अहमद बलाला इसे अपोजिशन जमातों की गलत फहमी बता रहे हैं। तेलुगु वोट में भी सब प्रजा कुटुंबी को देखना चाह रहे और माइनॉरिटीज में स्पेशली बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है इनके एमएलए और कारपोरेटर्स की वजह से, जो रिश्वतखोरी करे, जो लैंड ग्रैबिंग करे, नदियों में यहाँ पे बेचे ज़मीनात, और फिर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को अफजल नगर के स्पेशली जो 25-30 साल पहले बहुत बड़ी आबादी कायम हुई, वो लोगों को खबरस्तान की वजह से बस मरे तो मलकपेट के खबरस्तानों में यहाँ ले आने लड़ाइयाँ हो रही, क्योंकि लोगों को खबरों को जगह नहीं है। और इतने साल से, और ये कॉमन प्रॉब्लम है पूरे ओल्ड सिटी में, खबरस्तान का 50 एकड़ अलाट करा लिए, वाइस राजशेखर रेड्डी दे दिया, वो ड्रीम ही रह गया। आज तक खबरस्तान के लिए 1 एकड़ ज़मीन किसी मुसलमान के लिए ये लोग इंतजाम नहीं करे, और 2 टाइम से क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी बोलते आ रहे हैं, उनका भी फुलफिल नहीं करे। पहले बीजेपी भी रही वहाँ पर, टीडीपी भी रही, कांग्रेस भी रही, हर पार्टी के एमएलए रहे, लेकिन वो लोग हमेशा पार्शलिटी बरते हैं। पिछड़े हुए और माइनॉरिटी एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट हो या माइनॉरिटी यूथ को हरासमेंट हो किसी ना किसी तरीके से, वो तमाम चीज़ें जिस टाइम से मजलिस कामयाब हुई, हर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एरिया में डेवलपमेंट वर्क हुआ है। और जो अननेसेसरी माइनॉरिटी यूथ को जो पुलिस की जानिब से हरासा किया जाता था। हालांकि टीडीपी उम्मीदवार मुजफ्फर खान का कहना है कि अवाम को इंसाफ नहीं मिला, इसलिए परेशान लोग अब बदलाव चाहते हैं। आज जब मैं प्रजा कुटुंबी का कैंडिडेट बन के मुजफ्फर खान जब सामने आया, 4 पार्टी मिल के एक सर्वे के बाद तेलुगुदेशम को ये सीट छोड़ी और मुजफ्फर खान यहाँ से लड़ रहा, तो आज गली गली फिर रहे। उनका क़ायद असदुद्दीन ओवैसी 8 सीटों के ऊपर लड़ रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा वक्त उनका मलकपेट में लग रहा उनका, क्योंकि एमएलए और उनकी एमपी लीडरशिप मलकपेट के अंदर आवाम तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से डेली 6 घंटे से ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी मलकपेट में दे रहे, हर दिन जलसा अटेंड कर। मलकापेट के किले पर कब्जा जमाने के लिए टीडीपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि वोटर किसे कामयाबी का सेहरा बांधते हैं। जी सलाम के लिए हैदराबाद से शाहिद काजी की रिपोर्ट। ओवैसी बरादरान वाले मुस्लिम अक्सरियत इलाके में बीजेपी मुस्लिम लीडरान के सहारे अपने कदम जमाना चाहती है और इसी कड़ी में एबीवीपी की खातून लीडर शहजादी सैयद को चंद्रभान गुट्टा को हल्के से खासतौर से अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया गया है। पुराने शहर में बदलाव लाने का दावा करने वाली शहजादी ने शहर की बदहाली के लिए एआईएमआईएम को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि बरसों से मुसलमान ओवैसी भाइयों की क़यादत में गुलामी की जिंदगी काट रहे हैं और लोग हर दिन और पिछड़ते जा रहे हैं। मुसलमानों के टिकट देने के सवाल पर सैयदा ने कहा कि उन्होंने खुद यहां से लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी। इस मौके पर उन्होंने ओवैसी बिरादरान पर मजहब के नाम पर खौफ पैदा करने का इल्जाम भी लगाया। तो पूरे मौजू पर हमारे रिपोर्टर ने शहजादी सैयदा से खास बात की है। हमारे रिपोर्टर मीर मेहंदी अली बाकरी से उनकी बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त एबीपी के लीडर हैं, जो चंद्रभान गुट्टे के कैंडिडेट भी है, जिसका नाम है शहजादी सैयद। अब आइए उनसे पूछते हैं, वहाँ से उनको टिकट दिया गया जहाँ 20 साल से अकबरुद्दीन ओवैसी अपना गढ़ बना चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है इस हल्के से इलेक्शन लड़? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इलेक्शन लड़के, लोगों में बहुत रिस्पांस है, मैं आने से बहुत खुश हूँ और ज़रूर इंशाल्लाह हम जीतेंगे।
नहीं, आपको नहीं लगता कि एक बीजेपी ने एक माइनॉरिटी को टिकट दिया इसलिए कि जो है देने बोलकर, मगर वो जगह दी जहां पर बहुत 20 साल से अपना दबदबा बनाए रखे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जो जूनियर ओवैसी कहा जाता है उनको? देखिए, ये जगह चूज़ करने के मेरी मर्ज़ी थी, मेरी अपनी मर्ज़ी थी, और मैंने इसलिए ये जगह चुनी है जो अपने आप को मुसलमान बताते हुए मुसलमान समाज को उन्होंने आज तक कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। आज अगर आप घूम कर देखेंगे तो यूथ, जो मुस्लिम यूथ है, अगर पुलिस स्टेशन में जाकर उनमें से FIR केसेस और राउडी शेल्टर, अटेम्प्ट टू मर्डर्स, क्राइम केसेस निकालेंगे तो उस पर 90% यूथ में मुस्लिम यूथ है। तो मुझे लगता है कि आप इन्हें क्यों, हमारे यूथ को सही रास्ता नहीं बता सके। 20 साल से आप MLA थे, या उन्हें खुद आप फंसा रहे जो आपके पार्टी के अगेंस्ट में जा रहा है, और ख़ास करके यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। और जहाँ पर हम आज जाए तो ख़ास करके 4 बार MLA रह चुके हैं, एक वीमेन डिग्री कॉलेज नहीं है कांस्टेंसी में, और बारकस में सिर्फ एक ही गर्ल्स जूनियर कॉलेज है जिसमें CC एक ही सब्जेक्ट होता है। तो मेरा एक तालीम, तरक्की और कौमी इत्तेहाद, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो देश पूरा घूमकर अपने आप को मुसलमान बताते हुए हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़े लगवाते हैं। मेरा सवाल ये था कि इतने गढ़ में जहाँ पर MP का भी दबदबा सालों से है और MLA का भी है, उनका ये कहना है कि उन्होंने सालों से डेवलप किया है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, शादी मुबारक है और एजुकेशन स्कीम्स है, इन्होंने रिकमेंडेशंस पर लाई है, मगर बीजेपी ने यहाँ पर अपने लिए कुछ भी नहीं किया अब तक। तो क्या लगता है किस तरीके से बीजेपी KCR से टकराएगी? देखिए, 4 बार MLA रह चुके हैं वो यहाँ पर, तो ओल्ड सिटी में बैंक्स क्यों नहीं? अगर बैंक आएंगे तो मुसलमान को लोन मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट, हमारे यूथ रोड पे नहीं घूमेंगे। आज PG डिग्री पढ़कर वो छोटे छोटे मॉल्स बनाने, ऑटो रिक्शा चला रहे, वो गाड़ी रिपेयर का काम कर रहे हैं। इसका रीज़न कौन है? फिर बताइए। आपको तो मुस्लिम समाज, आप तो कभी हिंदू एरिया में घूमते ही नहीं थे, आप तो फिर मुस्लिम समाज के लिए एक नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मुसलमानों को डेवलप किया? ये मेरा क्वेश्चन है उनसे। एक बात साफ है, सदर जी का ये कहना है कि OCD डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से एक ही वजह है, जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और 2 भाई जो यहाँ पर सालों से हुकूमत कर रहे हैं। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकी, जी मीडिया, हैदराबाद। केरल में सबरीमाला मंदिर के बाद सुप्रीम कोर्ट के दिवाली पर पटाखा पाबंदी पर भी मुजाहरा शुरू हो गया है। चेन्नई में हुए एहतजाज के दौरान तंजीमों ने अदालत के इस फैसले को भी हिंदू मुखालिफ करार दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि इस पाबंदी से मुल्क के 10 लाख से भी ज्यादा ताजिर मुतासिर हुए हैं, उन्हें भारी सनती परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। इस मौके पर हुकूमत से फैसले में मुदाखलत की मांग की गई। Whatever the Supreme Court has taken, it was an immature decision. As they said, green crackers, they are not yet green crackers in the market, neither they have any idea on making green crackers. They would have given a reasonable time to the industry, then they could have implemented this ban. Really, it has affected 5 lakhs family for Sivakasi and almost 10 lakhs promised indirectly throughout India. We are all there. This is a old tradition of India. They don't have any right to interfere in the tradition of Hindu religion especially. We condemn this Supreme Court decision and we are always one. Wherever there is protest, we will be there. Thanks for giving this opportunity to come down here. These timing limits were very ridiculous. See, no one can dictate us when to eat, when to sleep. Okay, this is a tradition. We have a tradition that early morning we start the crackers. In the evening we don't. So this is also a draconian rule what the Supreme Court has done. No one will implement it. It is a waste of time for them. केरल में सबरीमाला मंदिर तनाजा रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज रियासती बीजेपी ने इसके खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई, दस्तखती कैंपेन के दौरान लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि औरतों के दाखिले पर गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही तनाजा शुरू हुआ, जो कि अलग अलग शक्ल में लगातार जारी है। और इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों रियासती हुकूमतों को निशाने पर ले रही हैं, जबकि अलग अलग समाजी कारकुन अपने अपने जाविये से इसे देख रहे हैं। Shabarimala is a great Hindu pluralistic temple where every community in Kerala had their own rights on. Shabarimala had great presence of scheduled tribe community Malayarias with them. And Malayarea community used to light the holy Magara Vilakku during the Magara Jyoti star which appeared on horizon on January 14th. Centuries Malayarias have right
and Malayarias have lit the Magaravilaka for centuries altogether. But later, when Travancore Devasam Board came, they snatched away the rights of Malayarias by 1950s when the electrification of that particular place came. Devasam Board is duty bound to stop the young feminists intruding into Sabarimala because they have given a time-seeking request in the Honorable Supreme Court. So right now the case is sub judice. It is being considered by Supreme Court either the time-seeking request or at least on January 22nd. So right now we are concerned whether anybody will do any misadventure in Sabarimala. Yes, that fear and concern is there, but at the same point of time, Kerala Police and Kerala Devasam Board is duty bound to sustain the earlier form of system because they themselves has given a time-seeking request in the Honorable Supreme Court. So until that particular thing is either disposed of or either given verdict by the Honorable Supreme Court, they shouldn't be allowing any young woman because it is against their own stand. रजनीकांत की नई फिल्म 2.0 रिलीज होते ही सिनेमाघरों में हलचल बढ़ गई है। एक तरफ जहां पर उनके हामी फिल्म को लेकर काफी खुश हैं, वहीं कर्नाटक की कुछ तंजीमें हंगामा कर रही हैं। उनका कहना है कि रियासत में किसी भी सूरत में रजनीकांत की फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी। रजनीकांत के साथ अक्षय कुमार और एमी जैक्सन की ये फिल्म मद्दाहों को काफी दिनों से इसका इंतजार था और इसका ख्वाब आज पूरा हो गया है। इस मौके पर मद्दाह खुशियां मना रहे हैं। फिल्म में टेक्नोलॉजी के जबरदस्त इस्तेमाल की तारीफ भी हो रही है और इस फिल्म का बजट तकरीबन 500 करोड़ रुपए बताया जाता है। I want to see my Talavar Darshanam. Past 1 week, daily I am regularly coming to the Albert Theatre. He's not a simple actor. Fourth generation is going on. Fourth generation. Worldwide going to release. Sir, very excited, very waiting. We are full worldwide waiting. We are waiting. And are you able to get the tickets? Yeah, I got ticket. Die-hard fan. I'm a die-hard fan. Not very simple. Rajinikanth, see my hand. तो सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन